जैसे वेस्ट बंगाल का पुलिस ने जो जो एफआईआर दर्ज किया था, सबसे पहले उसको स्टे कर दिया। अरे बंगाली में हो रहा है, आप लोग क्यों, हम लोग तो वहाँ पे इसमें वेस्ट बंगाल पुलिस और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को सेटबैक मिला है कि ममता बनर्जी और उनका जो पुलिस एंड अदर्स रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट 90 चार्जेस और अभी हाई कोर्ट में होगा ये सुनाई? नहीं, हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग स्टे कर दिया है कि सीएम है तो उनके लिए अलग सा कानून, रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बहुत बड़ा पैगाम है। तो उन लोगों को भी ममता बनर्जी के साथ एक ही जगह में जाना पड़ेगा, सेल अलग अलग हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो इससे पहले कि मैं आपको सुजीत जी की बात सुनाऊं जो कि संवैधानिक पदाधिकारी हैं, वो काफ़ी गहराई से उस पर नज़र रखते हैं, उससे पहले आप देखिए कल्याण बनर्जी जो टीएमसी नेता हैं, किस उनकी बौखलाहट से भी आपको काफ़ी कुछ मैसेज मिल जाएगा कि आखिर अंदर क्या हुआ। उनकी बात सुन लेते हैं, पहले क्या कहा उन्होंने, उसके बाद बात करेंगे सुजीत जी से। Article 32 petition has been filed, so therefore the Supreme Court has issued only notice and stayed the criminal cases initiated by on the basis of the complaint initiated by the Calcutta police, that has been stayed, and nothing is no more thing is there. Importantly, 2 or 3 observations are there. That one of the important observation in this matter by this Honorable Supreme Court, that when the election is forthcoming, then the interference by the ED to the political parties' affairs is also an important issue to decide. There are so many things to be decided, but this is also an important issue that has to be decided. Matter has been directed to appear on 3rd February. So the court has also said that it will be difficult for central agencies to work under such circumstances if the state. That is an observation. That is an The question is this. Question is, listen, it's a of course broader question. If you say so, the question is, whenever in a non-BJP state, central agency will interfere with the political party just before election, that is also not good. Correct? Similarly, if the central agency works and the state agency interferes, that is also not good. To maintaining this cooperative federalism is not the duty only of the state, it is also duty of the central government. Right? There were 2 parties there. You have to accept the 2 part. Every time, whenever in non-BJP state, before the election, see, here is what they have said. They have said courts come case, correct. We don't have anything to say. 2,700, we have nothing to. They have given the list of dates. Last evidence which has been taken by in this statement is 21st February 2024. Thereafter he was sleeping altogether. Now when the election is forthcoming, then he was jumping upon, ED is jumping upon. That is also the question, no? And it has also been said that if it is a property of the political party, then it should not be touched or other expression, whatever it may be. बांग्ला में ब्रीफ कर दीजिए कि हाई कोर्ट में सुनवाई हो, लेकिन No, court has said, okay, this is Supreme Court. Whatever, we are bound by the order of this. Supreme Court has not said that the High Court has no power to hear and etc. Not said. Supreme Court has said larger issues are there, we'll hear. Let them hear, I wouldn't mind. बांग्ला में ब्रीफ कर दीजिए कि आपका क्या रिएक्शन है। आपको हिंदी इंग्लिश हो गया? एजेंसी सर, वी आर एजेंसी सो बांग्ला, वी आर एजेंसी सो वी नीड बांग्ला। बांग्ला में उधर जाना होगा। वी कैन डू हर जगह सर। It's going live. I am not listening, but your आपको बांग्ला काउंटर पार्ट सब उधर है। No, बांग्ला के लिए उधर जाना। सुनो। This is going live. इधर small सुनिए ना, इधर आप लोग का बीजेपी स्टेट का है, उधर का नॉन बीजेपी No, स्टेट no, का we है, are not. होगा ना। हम लोग बीजेपी नहीं सर। एक छोटा सा एक छोटा ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है, और नोटिस किया है ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है, और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3rd फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे।
और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस ने उसको स्टे किया है। सर वन क्वेश्चन हम बोलेंगे नहीं, आप तो आप क्वेश्चन पूछिए, हम चलते हैं। नहीं सर You are agent of someone. यस दादा दादा You have come अमन, to destroy the press conference. बंगाली में हो रहा है दादा, क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे बंगाली में हो रहा है, आप लोग क्यों? हम लोग तो वहाँ पे नहीं गए थे ना। किसका प्रेस का अमित शाह भेजा है आपको? अब दादा ছেড়ে দিন, দাদা দাদা একটু বলে দিন আমাদের। আজকে ওই কোর্টে সারাক্ষণ ধরে মামলা চললো, 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ईडी जिस तरीके से पहुंची थी ममता बनर्जी के खिलाफ, जिस तरह से उनके साथ अभद्रता की गई उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट, तो आज उसकी सुनवाई हो रही थी। आपने देखा कल्याण बनर्जी का बयान मैंने आपके सामने रखा, बंगाली में बोला लेकिन वो भड़कते हुए भी नजर आए मीडिया के ऊपर। तो हमारे साथ हैं सुबोध जी। हाँ शुभोजीत दत्तो, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यूनियन ऑफ इंडिया। यस, तो हमने पिछली वीडियो आपके हिसाब से शेयर की थी। इन्होंने पूरे संवैधानिक तौर पर बताया, समझाया था कि किस तरीके से सारा फंक्शन करता है और कैसे आप देखते हैं कि कौन स्टेट क्या कुछ कर रहा है, और राष्ट्रपति शासन हो चाहे इमरजेंसी लगाना हो उसके लिए सब पहल करते हुए नजर आते हैं। तो अधिकारी महत्वपूर्ण है, इनकी बात आप लोगों ने पिछली बार सुनी थी और आज जिस तरीके से आया है वर्डिक्ट, या क्या कहेंगे, किस तरह से क्या कुछ कहेंगे? क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कोर्ट का प्रोसीडिंग का बारे में सुना और समझा, उसी हिसाब से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा झटका ही लगा है, क्योंकि अनलॉफुली अनकॉन्स्टिट्यूशनली प्रोसीडिंग चल रहा था गैर संवैधानिक तरीके से। जैसे वेस्ट बंगाल का पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया था, सबसे पहले उसको स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ईडी का जो सेंट्रल एजेंसी का ऑफिसर्स एक्शंस कर रहे थे वो लॉफुली हो रहा था। तो वो सेंटर का बिना सैंक्शन जो पहले से परमिशन लेना पड़ता है, जो CRPC 197 सबसेक्शन 1 में था, बाद में 218 BNSS में आया है, तो बिना सैंक्शन लेके फटाफट FIR रजिस्टर कर दिया था। ये जो ईडी का ऑफिसर्स के अगेंस्ट वेस्ट बंगाल पुलिस, उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टे कर दिया। ये सबसे बड़ा मतलब सक्सेस है सेंटर का। और नेक्स्ट है कि नोटिस भेज दिया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को रिप्लाई देने के लिए, और फरवरी का फर्स्ट वीक में डेट दिया 2 वीक्स के बाद, ताकि ये जो पिटीशन है ईडी का, इसके ऊपर वेस्ट बंगाल का क्या रिप्लाई होगा वो एफिडेविट फाइल करके उन्होंने बोला है। और साथ में कुछ ऑब्जर्वेशंस है कि एक तो है कि क्या फाइल्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स और जो लेके उन्होंने जा रहे थे उसका डिटेल क्या है, ईडी ने बताया है। तो इसमें बोला कि ऐसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्शन चलते हुए, एजेंसी हो, अथॉरिटी हो या कोई ऑफिस हो, चलते हुए स्टेट गवर्नमेंट का ऐसे रुकावट पैदा करना, वो भी CM का डायरेक्ट यहाँ आके, वो एकदम गलत हुआ है और ऐसे होना नहीं चाहिए। और क्या क्या डिटेल एक्चुअली लेके CM साथ में गई है, उसका डिटेल वेस्ट बंगाल का काउंसिल गवर्नमेंट मिस्टर कल्याण बनर्जी, इन्होंने कोर्ट को बताया है। तो कोर्ट ने उसके बदले में बोला जो भी है ऐसे तरीके से ऐसे लेना नहीं चाहिए था। और साथ में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो क्वेश्चन रेज किया चुनाव के टाइम में ऐसे क्यों किया गया, चुनाव से पहले, तो उसके ऊपर बोला है कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट का भी रिप्लाई बनता है। तो हियरिंग के दौरान, फर्दर हियरिंग के दौरान वो सुना जाएगा। तो फिलहाल अभी जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को रिप्लाई देने बोले हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसी पिटीशन के ऊपर क्या जवाब देंगे, एफिडेविट करके बताए। और जब पूछा गया कि कलकत्ता हाई कोर्ट में जब हियरिंग चल रहा था तब फिर सुप्रीम कोर्ट में आने का ज़रूरत क्या है, उसका ईडी ने जवाब दिया था कि वहाँ पे हल्ला हो के हियरिंग जो है गड़बड़ हो गया था। और उसका बदले में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बताया कि क्योंकि ये तो ईडी ने ही किया कि पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में अप्रोच किया, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास ईडी नहीं आ रहा है, तो ईडी से ही पूछिए। तो ईडी ने बताया कि वहाँ का कोर्ट रूम के अंदर भी जो एनआरकी का स्थिति था वो बताया है। और CBI इन्वेस्टिगेशन क्यों चाहिए, इसके ऊपर दोनों पक्ष ने अपना मत रखा है। खास करके ईडी ने रखा है कि
यहाँ पे वेस्ट बंगाल पुलिस ने खुद एफआईआर रजिस्टर करके इस मैटर में दखलंदाजी करने आया था जो ईडी का जुरिस्डिक्शन है, तो अभी ये कर नहीं सकता वेस्ट बंगाल पुलिस और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। और अभी जो इंसिडेंट हो गया वहाँ तक, जो वहाँ पे सीएम और डिफरेंट आईपीएस ऑफिसर्स, डीजीपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता और जो डीसी साउथ कोलकाता, इन लोगों ने आके और गवर्नमेंट ने आके दखलंदाजी किया, इसका लार्जर प्रोब होना चाहिए। हटाने की बात भी की है, इन अफसरों को हटाने की बात भी की है। नहीं, इस ऑफिसर को हटाने का मतलब इन्वेस्टिगेशन से हटाना, या मतलब इन्वेस्टिगेशन तो स्टे ही कर दिया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो एफआईआर दर्ज किया था, जो हमने पहले भी बताए थे कि ये डायरेक्ट जो आर्टिकल 256 और 257 एक्सेट्रा के अगेंस्ट ये चैलेंज है, तो जो वेस्ट बंगाल पुलिस और गवर्नमेंट ने ठुकरा दिया था, तो वो बात सही साबित हो गया कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के दौरान जो रुकावट स्टेट गवर्नमेंट ने पैदा किया था, स्टेट पुलिस ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि आप कर नहीं सकते। तो वो जो एफआईआर दर्ज किया गया था कोलकाता में, कोलकाता पुलिस द्वारा, उसके ऊपर स्टे लगा दिया, उसके ऊपर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्रोसीड ही नहीं कर सकता। और साथ में सीबीआई क्यों चाहिए, इसका जवाब में ईडी ने बताया कि यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी का रूप में, तो जब पुराना सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है जिसका साइटेशन ईडी ने दिया है कि जब ये हाई वोल्टेज, हाई प्रोफाइल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ऐसे इन्वेस्टिगेशन में और ऐसे मैटर में इन्वॉल्व हो जाता है, तब उसका जांच जो है देश का सर्वोच्च एजेंसी, जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा करने का ही सुप्रीम कोर्ट का पुराना जो है ट्रेंड और जो जजमेंट्स है, विरासत है। तो इसमें जो है एक बात सामने आ रहा है साफ साफ, इसमें वेस्ट बंगाल पुलिस और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को सेटबैक मिला है, जो हमने न्यूट्रली, मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हूँ यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें लीगली प्राइमा फेसी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ही झटका मिला है। हालांकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये बात बार बार रेज करेंगे कि भाई चुनाव से पहले क्यों, वो हियरिंग के दौरान फर्दर टेकअप किया जाएगा, लेकिन फिलहाल पहले रिप्लाई तो दो। 2 फरवरी या फरवरी का फर्स्ट वीक के अंदर रिप्लाई देने बोला है, 2 हफ्ते के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा। अब रिप्लाई में क्या बोलेंगे वेस्ट बंगाल पुलिस, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल का सीएम, क्योंकि उनका जो हमने पिछले भी इस मैटर में जो यहाँ बताए थे, वहाँ पे बताए थे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो बात मीडिया में बोला और हर जगह में बोला कि यहाँ से हमारा ये ले रहा था, पॉलिटिकल मोटिव था, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर पाएंगे तो हमने पहले बोले थे कि सीएम को सलाखे का पीछे भी रहना पड़ सकता है। तो वही लाइन में ये आगे जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनली भी अगर इस टाइम यूनियन ऑफ इंडिया टेकअप कर ले, ये हियरिंग पेंडिंग है, सब जुडिस है, नेक्स्ट चुनाव से पहले अगर इच्छा प्रकट की है, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल विल पावर, वो दिखाए तो प्रेसिडेंट रूल लगना भी संभव है। हालांकि मैं तो इसमें नया फ्रेश रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, उनको रिपोर्ट देना चाहिए। मैं अभी दूसरा मैटर में मैं इन पर्सन इधर मामला भी करता हूँ, दिल्ली का मैटर में, यूनियन ऑफ इंडिया का मैटर में मैं SLP फाइल करने वाला हूँ, और जो है मेरा नेशनल इमरजेंसी विद फाइनेंशियल इमरजेंसी का रिपोर्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन उस दौरान था, और फर्दर जो अभी इंटरनेशनल सिचुएशन बिगड़ते हुए नजर में आ रहा है, 25% टैरिफ लगाओ, ये करो वो करो, उसमें इंडिया का इकोनॉमी, और अभी जो वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है उनका स्टेटमेंट आया है कि इंडिया का कुछ सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स बिगड़ने वाला है यूएस के साथ ट्रेड डील। मैं इसके ऊपर नजर रखा हूँ। रहते यही कल्याण बनर्जी, जिन्होंने MP भी है, तो इन्होंने यहाँ पे बांग्ला में जो बोल रहे थे उसका सिनॉप्सिस यही है, उन्होंने अपना खुद का कसूर ढक रहे थे कि हम तो बताए हैं कि चुनाव से पहले क्यों ऐसे होता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ज्यादा कुछ तकड़ा नहीं बोले या कोई ऑर्डर नहीं किए, हाँ बोले वो तब यूनियन ऑफ इंडिया को पूछे कि हाँ जी ये कैसे करते हो, किस लिए करते हो, तब उन्होंने बोले कि ये तो ईडी का रूटीन एक्शन था, ये ब्लैक मनी और करप्शन के रिलेटेड मैटर था, तो इसलिए ये मैटर ये जवाब यूनियन ने दिया। और अभी हाई कोर्ट में होगा ये सुनवाई? नहीं, हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग स्टे कर दिया है। हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग कैसे होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, और उनको फरवरी का फर्स्ट वीक में जो डेट शायद 2 फरवरी ऐसे कुछ मैं सुन रहा था, तो वो जो 2 वीक्स का टाइम तो अभी से ऐसे ही बनता है, तो वो जवाब देने का जब टाइम दिया है हाई कोर्ट में कैसे होगा।
हाईकोर्ट तो खुद ही सुब्रा घोष, जस्टिस सुब्रा घोष के सामने जब ईडी ने जाके बोला है ये 14 तारीख के बाद कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया, मैटर पेंडिंग है, तो इसको काइंडली एडजर्न करो। एडजर्न तो अलाउ हो गया, हाईकोर्ट ने खुद ही एडजर्न अलाउ करके रखे हैं, तो अभी तो हाईकोर्ट में होगा नहीं। फर्दर जो है हाईकोर्ट अगर एडजर्न अलाउ करके नेक्स्ट जो डेट दिए थे 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, तो उस डेट पे जाके इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है उसका अपडेटेड स्टेटस बता देंगे डॉक्यूमेंट के साथ। तो हाई कोर्ट का अभी हियरिंग होने का कोई मतलब रास्ता नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट का वो चले। एक चीज और बोली थी पिछली बार वीडियो में कि भाई ये जो कोई अगर ऐसा प्रूफ होता है तो एक कॉपी होती है, अगर जैसे वो इल्जाम लगा रही थी ममता बनर्जी कि भाई अगर ये है तो मेरा मिस है, कॉपी होती है। तो अब इस केस में आप जैसे वो फाइल लेके गई है, अब वो क्या राज का पता चलेगा, कुछ क्या ले गई क्या नहीं ले गई? वो तो हमने हियरिंग के दौरान जो हुआ सुन रहे थे, जो ये वेस्ट बंगाल का काउंसिल एडवोकेट कल्याण बनर्जी जो बांग्ला में बोल रहे थे, उसमें उन्होंने बोल रहे थे कि हमने कोर्ट को बताया, ज्यादा कुछ हमने लेके नहीं गया, हमने तो सिर्फ SIR का कुछ डॉक्यूमेंट, वोटर लिस्ट रिगार्डिंग, कैंडिडेट का रिगार्डिंग, ये वो सब लेके आया, एक पेन ड्राइव ऐसे कुछ लेके आया, ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो उन्होंने अपना पक्ष को वो मतलब बचाने के लिए वो कोर्ट में बताए हैं, लेकिन इसमें हमने और भी लोगों से यहाँ जो जानकारी हासिल किया, मैं कोर्ट रूम के अंदर नहीं था, इसमें जो है यूनियन ऑफ इंडिया और ईडी ने बताया कि ममता बनर्जी और उनका जो पुलिस एंड अदर्स रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट 90 चार्जेस लग चुका है, जिसमें ईडी का एक्शन में, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और जो है पब्लिक सर्वेंट को ऑन ड्यूटी रुकावट पैदा करना, ये सारे चार्जेस यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो फाइल ले जाना और अपने आप को रक्षा करना, इसका जो टैक्टिक्स है ये टिका नहीं है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया का जो पक्ष है, इन्होंने तगड़ा जो है कोर्ट में ये चार्जेस बोल के जो है वेस्ट बंगाल पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन FIR के ऊपर था उसमें स्टे हासिल कर लिया। तो यही तो जवाब है कि उनका बोलने का मैटर में सुप्रीम कोर्ट सुने नहीं है, आगे नहीं बढ़ा, बल्कि यूनियन ऑफ इंडिया का ही सुना। और जब नोटिस इशू कर दिया कि 2 हफ्ते के अंदर जवाब दो, नेक्स्ट डेट तय कर दिया, और CBI इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्यों मांग है, उसके ऊपर जब खुलासा हो गया कि ये हाई प्रोफाइल रेस्पोंडेंट या एक्यूज्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट का पुराना जजमेंट है या विरासत है कि ऐसे केस में CBI इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इसमें CBI इन्वेस्टिगेशन होने के लिए ही तो आगे खुल रहा है। अभी मैटर विल गो टुवर्ड्स लॉजिकल कंक्लूजन, अभी तो उधर ही जा रहा है। इसमें हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व है। मैं कुछ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का CM को, ममता बनर्जी को तो इन्वेस्टिगेशन में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ईडी का प्रोसेस में उनको अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन CBI के द्वारा ऑर्डर दे दे, तब CBI के सामने ममता बनर्जी को पेश होना पड़ेगा। लोगों को याद होना चाहिए कि जब गोधरा रायट हुआ था, उसके बाद SIT लगा था, तब आज का जो प्रधानमंत्री है PM नरेंद्र मोदी, तब गुजरात का CM थे, उनको बार बार जो है SIT के सामने पेश होना पड़ रहा था, इन्वेस्टिगेशन लंबा चला था, लेकिन आखिरकार जो RK राघवन कमेटी जो है, पुराना CBI डायरेक्टर का एक कमेटी हुआ था, उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए थे। तो लेकिन उसी गोधरा कनेक्टेड डिफरेंट मैटर्स में अमित शाह को भी जेल जाना पड़ा था, जो अभी यूनियन होम मिनिस्टर है। तो ऐसे नहीं है कि CM है तो उनके लिए अलग सा कानून, रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो फंडामेंटल राइट है। और भारत का संविधान में फंडामेंटल राइट ऐसे रखा गया कि मैं अपना फंडामेंटल राइट आपका फंडामेंटल राइट को ठुकरा के नहीं मतलब एक्सरसाइज कर सकता, एक्चुअलाइज नहीं कर सकता। तो इसमें जो फंडामेंटल राइट्स ठुकरा दिया गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, CM और पुलिस के ओर से, बाकी देश का लोगों का फंडामेंटल राइट के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, ये महंगा पड़ रहा है। और इसमें जो है CM को, और CM हो और कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है और कोई भी है, उनको CBI इन्वेस्टिगेशन होगा आफ्टर जजमेंट और भाडिक, तो उनके सामने पेश होना पड़ेगा। और ईडी जैसे बोला है 90 चार्जेस है, 90 चार्जेस ठीक है,
लगा है उसमें से मैं मान लेता हूं कि 50 चार्ज जैसे कि अभी अगर टिक जाता है तो मुझको तो साफ ममता बनर्जी के एंड अदर्स का आज का सीबीआई का जो आज का जो हियरिंग हो के जो ऑर्डर हुआ है, स्टे हुआ है, नोटिस हुआ है, मुझको तो ममता बनर्जी को जेल के अंदर दिखाई दे रहा है। बहुत काफी मुश्किलें होती हुई दिखाई दे रही है ममता बनर्जी के लिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा अपनाया है। और वो जो सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के लिए मैं पैगाम नहीं दूंगा, मैं जो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स भी है, जो डीजीपी या कोलकाता पुलिस कमिश्नर और जो आईपीएस ऑफिसर्स, इन लोगों ने भी बुरे तरीके से फंस गया है। कानून कोई वर्दी लगा के अशोक स्तंभ लगा के अपना हाथ में नहीं ले सकता है, वो आईएएस हो, आईपीएस हो, मिनिस्टर हो, सीएम हो, कोई भी हो। तो आज का ये बहुत बड़ा पैगाम है, तो उन लोगों को भी ममता बनर्जी के साथ एक ही जगह में जाना पड़ेगा। सेल अलग अलग हो सकता है। मुझको लग रहा है कि ये मामला बहुत बुरा तरीके से फंस गया। और ये जो एक मतलब फ्लैगिंग किया जाता है चुनाव से पहले, अगर बातों में दम है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें भी सुन के, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सुन के सेंटर के ऊपर भी जो है ऑब्जर्वेशन देंगे, या पर्टिकुलर गाइडलाइंस, जैसे डिफरेंट गाइडलाइंस होता है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन फॉर अरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन फॉर दिस, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन फॉर दैट। तो ऐसे कोई गाइडलाइन भी मतलब लगा सकते हैं। किसी को पनिशमेंट देना है तो वो दे सकता है, लेकिन वो पहले कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग में रिप्लाई देने बोला है ना, एफिडेविट करके विद इन 2 वीक्स, तो वो रिप्लाई में दिखाओ। अगर साबित हो पाएगा तभी तो होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो डेट 2 फरवरी है। हाँ, मुझे सुनने को आया 2 फरवरी। तो 2 वीक्स का टाइम, तो आज तो 15 है, तो आज से तो जनवरी का लास्ट में ही होगा 2 फरवरी। जैसे कल्याण बनर्जी बोल रहे थे, उन्होंने ही तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का काउंसिल है, उनको हमने सुना है, तो उन्होंने 2 फरवरी बोल रहे थे। तो 2 वीक्स के अंदर इन लोग को रिप्लाई अभी तैयार करना पड़ेगा। अब रिप्लाई के ऊपर फर्दर क्या प्रोसीडिंग होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मेरा दिमाग में आया इसी टाइम, जो अभी होगा ये सुप्रीम कोर्ट में और सबके सामने पब्लिकली, सब वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 का पहले ये हियरिंग चल रहा है। तो यहाँ पर भी जो जुडिशियल जो आउटकम्स आ रहा है, इससे ही जो पब्लिक का राय देने का विचार भी बन जाएगा। क्योंकि आज लोगों का हाथों में, सबका हाथों में स्मार्टफोन है, सब कुछ है, सब लोग जान जाएंगे। हमारा भी न्यूज़ जैसे टेलीकास्ट हो जाता है, मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, तो लोग इससे सीखने भी लगेंगे कैसे क्या होता है, कैसे ये लर्नेड जो है इलेक्शन होने जा रहा है, मुझे लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जिस तरीके से कहीं लग रहा है उल्टा पड़ता हुआ जा रहा है, आधी छोड़ पूरी को दावे, पूरी में लेना आधी पावे, जिस तरह से कहा जाता है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली राम। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से खेला करने का प्रयास किया है, उन्हीं के साथ खेला होता नजर आ रहा है। बाकी हमारी नजर बनी रहेगी। आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को, जरूर कमेंट करके अब खेल खत्म होने जा रहा है, खेला होने से खेल खत्म होने का दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज का हियरिंग का जो नतीजा है, इससे मैं कहूंगा ईडी का ही अभी 70% विक्ट्री, 80% विक्ट्री ईडी का हुआ। क्योंकि कोलकाता पुलिस का एफआईआर के अगेंस्ट स्टे लग गया, हाईकोर्ट का हियरिंग के ऊपर अभी एडजमेंट लग गया, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का जो याचिका था ईडी का, उसके ऊपर फर्दर रिप्लाई और एफिडेविट फाइल करने का टाइम लग गया। इसमें तो मैं कहूंगा अगर ये फुटबॉल मैच के तौर पे दिखा जाए तो ईडी ने 3 गोल दग दिया, तो वेस्ट बंगाल पुलिस हार्डली 1 गोल दग पाया कि नहीं, वो भी डाउटफुल है। क्योंकि वो अभी VAR हुआ है फुटबॉल में, जो रेफरी का डिसीजन ठीक नहीं होता है तो डिजिटल हेल्प लिया जाता है, तो VAR में रेफर हुआ है। तो कम से कम यूनियन ऑफ इंडिया ने 3 गोल तो दग दिया, 3-0 से आगे है। 3-1 होगा कि नहीं, वो 2 फरवरी के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। बिल्कुल। तो जो खेला शुरू किया था ममता बनर्जी ने, वो खेले का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। खेल खत्म होने दिखाई। बिल्कुल। आप कैसे खेल खत्म। तो आप कैसे क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।